Okay. So today we'll solve MCQ from the topic that is our NDDS, which is in our seventh semester. Okay. And it's also a part of our syllabus. It's a lengthy syllabus, but still uh, not much questions come from this part. But still, we need to know basic regarding this in order to solve the MCQs. Okay. So today we'll start with the first MCQ and you will answer. Okay. So the first MCQ that we have, it is written here, highly branched globular monodisperse polymorphic macromolecules having 3D structure. So it is a direct question. So here we need to pick the specific word, that is our 3D structure. Okay. So it is written that highly globular monodisperse polymeric macromolecules which has got 3D structure. So now from the given options, can anyone tell me which one has got 3D structure? The options are nanoparticles, liposomes, neosome, and dendrimers. Yes, very good. This answer will be dendrimers. Okay, because dendrimers they originate from, you need to remember, they originate from two words. किससे? एक तो dendron. They originate from two words. One is dendron. And dendron का मतलब क्या होता है? Dendron का मतलब होता है tree. Okay, tree. और मेरोस, दूसरा जो टर्म उससे लिंक्ड है, दैट इज मेरोस. डेनड्रॉन होता है हम लोग का ट्री. ठीक है. और मेरोस का मतलब होता है सेगमेंट, पार्ट और सेगमेंट. पार्ट भी बोल सकते हो और सेगमेंट भी बोल सकते हो. इट इज अप टू यू. ठीक है. तुम उसको पार्ट भी बोल सकते हो, सेगमेंट भी बोल सकते हो. ठीक है, जैसे तुम रिकॉल करते हो. ठीक है, तुम लोग जैसे जिस टर्म से बुलाते हो. ठीक है, पार्ट या फिर है. तो इसमें क्या होता है, मेनली ये क्या होता है, मेनली ये होता है दे आर सिंथेटिक थ्री डायमेंशनल हाइपर ब्रांच ग्लोब्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, जो कि हम लोग क्या ऑरिजिनेट, जो कि हम लोग का बहुत ही हाई ब्रांच रहता है. ठीक है, ऑरिजिनेट किया गया है फ्रॉम द वर्ड, टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज डेनड्रॉन एंड मेरोस. ओके. एंड दे आर जनरली सिंथेटिक. They are synthetic and they are three dimensional hyper branched globular macromolecules. Okay, so here the answer will be ডেনড্রাইমাস. সি দেখো এখানে তুমি যে এগুলো বলতে পারছো, ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু কাজে এসে যাবে, কারণ তোমার এখন এটা নেই. তাও যদি তুমি কিছু না কিছু ভেবে চিন্তে অ্যান্সার করে অ্যাটলিস্ট রাইট অ্যান্সারটা করে আসতে পারো, আই থিঙ্ক বহুত ইউজফুল হবে. ঠিক আছে. ঠিক আছে, নেক্সট. নেক্সট ইজ, হোয়াট শুড বি দ্য ডেন্সিটি অফ আ ডোজেজ ফর্ম to be a potential candidate for gastroretentive drug delivery. So now for GRDDS, that is our gastroretentive drug delivery system. Okay, we know there are various type of mechanism. Okay, but इधर लिखा है which one is the ideal. Okay, potential, which one भी, तो हम लोग को क्या पता है ये GRDDS जो है, GRDDS में क्या होता है, ये हम लोग का GIT. ठीक है, इधर से हम लोग का क्या करते हैं, हम लोग को ड्रग को उसका रिटेंशन या फिर उसका जो रेजिडेंस टाइम है उसको ज्यादा करना होता है, राइट. तो सबसे ज्यादा रेजिडेंस टाइम जब, कब ज्यादा होगा, जब हम लोग इसको, कब ज्यादा होगा, ये हम लोग का जीआईटी है, स्टोमक है, तो इसमें सबसे ज्यादा रेजिडेंस कब होगा, जब हम लोग का जो ड्रग है उसको तुम क्या कर पाओगे, इधर ज्यादा टाइम के लिए फ्लोट कर पाओगे, इसको तुम रोक के रख पाओगे. डिलीवरी सिस्टम दैट विल लेट द ड्रग टू फ्लोट इन गैस्ट्रिक सिस्टम, राइट. तो फ्लोट करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए या लेस होना चाहिए. ज्यादा या लेस. ज्यादा होगा तो फ्लोट थोड़ी करेगा, ज्यादा होगा तो नीचे चला जाएगा ना. मीडिया का, जो मीडिया बोल रहा है उसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा पार्ट जो तुम्हारा
ड्रग है उसका तो तुम जिस सिस्टम से डिलीवर कर रहे हो उसका तो कम होगा तभी वो फ्लोट करेगा ना, ज्यादा होने से थोड़ी फ्लोट करेगा। तो डेंसिटी हम लोग का लेस होना चाहिए। ओके, डेंसिटी शुड बी लेस। तो सबसे ज्यादा लेस इसमें कौन सा है? कौन ना? यस, दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, 1 ग्राम दिस, ये एक बार नाइपर में आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नाइपर से आया है, ठीक है। दिस वन हैज कम इन नाइपर। तो दैट इज द आइडियल फॉर GRDDS। ओके, so next is non-ionic surfactants. Sorry, wait, huh? Non-ionic surfactants are used in nanoparticles, liposomes, neosome, or reshield RBC. Anyone? Okay, now I'm telling you this. What will be the answer? So this is from the term itself. Okay, in the term neosome, neo, this word neo means, neo का मतलब होता है नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। ओके, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। तो नियो का मतलब होता है नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। ओके, और सोम्स, नियो छोड़ के सोम्स भी है। सोम्स का मतलब होता है वेसिकल्स। वेसिकल्स, सोम्स स्टैंड्स फॉर वेसिकल्स। सो नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स और सोम्स आता है वेसिकल्स। इसीलिए हम लोग समझ सकते हैं कि नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट में हम लोग का कौन सा यूज होता है। एनीवन अभी तो बता पाओगे? यस, नियोसोम्स would be the answer. Okay, नियोसोम would be the right answer. Air trapped by the swollen polymer confers buoyancy in which type of GRDDS? GRD नॉन एवर्वेशन, एवर्वेशन, नॉन फ्लोटिंग, नन ऑफ द अबव। तो हम लोग को पता है कि हम लोग का जो GRDDS है उसमें बहुत सारा मेकानिज्म था। एवर्वेशन था, नॉन एवर्वेशन था, म्यूको एडेसिव था, बायो एडेशन था, ठीक है। तो बहुत सारा अलग अलग फेनोमेना था, तो उसमें से अब तुमको बताना पड़ेगा। एयर ट्रैप्ड बाय द सोलन पॉलीमर, पॉलीमर कॉन्फर्स बायोन्सी। तो ये कौन सा टाइप के लिए सुइटेबल होगा? विच टाइप ऑफ GRDDS के लिए? तो देखो, पहले तुमको कट आउट करना होगा ऑप्शन। पहला जो सी ऑप्शन दिया हुआ है नॉन फ्लोटिंग, अगर फ्लोट नहीं करेगा तो GRDDS होगा कैसे? नॉन फ्लोटिंग तो कोई टाइप होता ही नहीं है, तो सी वाला कट, ठीक है। पहले सी वाले को रिमूव कर दो, ठीक है। अब तुम्हारा दो टाइप बचा है, एवर्वेसेंस या फिर नॉन एवर्वेसेंस। और अब हम लोग का अगर एवर्वेसेंस है रहेगा, इफ एवर्वेसेंस विल बी देयर, देन क्या होगा? एवर्वेसेंस विल वाज रिलीज, देन इट कांट रिटेन द ड्रग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर एवर्वेसेंस जल्दी रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा? वो ड्रग को ज्यादा टाइम के लिए रिटेन नहीं कर पाएगा। तो इधर लिखा है एयर ट्रैप्ड बाय द स्वॉलन पॉलीमर, जिसमें ज्यादा टाइम के लिए रिटेंशन का बात चल रहा है। तो ये एवर्वेसेंस अगर रिलीज हो जाएगा तब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लेक तो इसलिए हम लोग का ये जो टाइप होगा ये है फॉर नॉन एवर्वेसेंस टाइप। ओके, सो हियर क्या होगा? हम लोग का आंसर होगा ए, दैट इज नॉन एवर्वेसेंस। ओके, नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द मटेरियल्स कॉमनली यूज्ड फॉर बायोएडेशन एक्सेप्ट, ठीक है। तो अब हम लोग को ये, तुम लोग अगर NDDS ना भी पता है फिर भी तुम लोग गेस कर सकते हो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो मटेरियल है जो कि हम लोग का बायो एडिशन में काम नहीं आएगा। इट इज वेरी इजी, यू कैन चेक द ऑप्शंस एंड टेल इफ यू इवन डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट। एनीवन? एग्जैक्टली, द आंसर विल बी
सोडियम बाइकार्बोनेट, रेस्ट ऑल alginate, chitosan and cellulose derivatives all can be used in in biodigestion, but sodium bicarbonate, it is not used, it is cannot be used. This is the material that is not only not associated with any type of myo glucoaddition और बायोडेशन। तो देखो ये सब क्वेश्चन क्या बोलो, तुम अगर ना भी पता चले तुम ऑप्शंस देख के प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो दिस आर गोल्डन चांसेस। ओके, अच्छा नेक्स्ट, synthetic elastomers like polyisobutylene, polybutadiene are used in the preparation of, तो ये किसके लिए काम आता है, ठीक है? टीडीडीएस, लिपोसोम नैनो पार्टिकल्स नहीं होता, अच्छा टीडीडीएस या फिर ट्रांसडर्मल है, हाँ टारगेटेड नहीं। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लिपोसोम नैनो पार्टिकल्स या फिर न्यूरोसोम। तो इलास्टोमर का काम होता है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। ओके, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना इज द काम ऑफ इलास्टोमर, राइट? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। वो कौन सा टाइप के लिए आइडियल होगा? अगर कोई सब्सटेंस सिंथेटिक इलास्टोमर इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा, तो कहा कौन सा टाइप के ड्रग डिलीवरी के लिए वो यूजफुल होगा? एनीवन? क्लू है कि व्हेन यू मेक पैच, there it is very useful. So now you can tell patch, which type of drug delivery patches are used? Yes, yes, transdermal drug delivery system with the answer. Okay, जहाँ पे हम लोग पैच बनाते हैं, जहाँ पे इलास्टोमर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है? तो अगर ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होता तब ऑब्वियसली नहीं होता, क्योंकि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी और ये लिपोसोम न्यूजोम ये सब एक ही साइड से आते हैं, ठीक है? तब वो कोई काम का नहीं होता, बट दिस इज टीडीडीएस, हियर इट इज ट्रांसडर्मल। ओके, ओके, इंट्रा, अच्छा क्या लिखा हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन रूट इन्वॉल्विंग, रूट इन्वॉल्विंग तुम्हारा क्या होता है? ड्रग इंजेक्टिंग इन द एंटीरियर और पोस्टीरियर चेम्बर ऑफ आई, ठीक है? तो ये कौन सा होगा जो कि इन्वॉल्व कर रहा? एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर चेम्बर ऑफ आई में अगर एडमिनिस्ट्रेशन हो। अच्छा, इसका एक तो फोटो है जहाँ पे इंजेक्ट कैसे करवा रहा इन पर्टिकुलर ओक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है? तो उसको क्या नाम से बुलाया जाता है, उसका मैं एक तो फोटो ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, आफ्टर द क्लास। ओके, जहाँ पे तुम लोग फोटो देख के समझ पाओगे कि कौन सा एरिया में इंजेक्ट करके किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, जहाँ पे इंट्राविट्रियल भी हो रहा, इंट्राकैमुलर ओक्यूलर, सबका ही फोटो देख के तुम समझ जाओगे। तो इधर पूछा इंजेक्टिंग ड्रिंक द ड्रग इन द एंटीरियर और पोस्टीरियर चेम्बर ऑफ आई। तो कैन एनीवन टेल मी उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर चेम्बर ऑफ द आई में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अगर फोटो मैं भेजूंगा तो तुम लोग समझ जाओगे। बट फिलहाल मैं फोटो अपने पास सामने नहीं है, बट आफ्टर द क्लास आई विल मेक श्योर कि मैं ग्रुप में सेंड करूँ। तो फॉर नाउ कोई बोल पाओगे कि एंटीरियर या पोस्टीरियर चेम्बर ऑफ आई में आ, कौन सा टाइप का तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है? गेस कर पाओगे एनीवन? नहीं, पेरिलॉक्यूलर नहीं होगा, पेरिलॉक्यूलर इज आउटसाइड। इधर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बोला, आउटसाइड में होता, तुम फोटो में देखोगे तुम समझ जाओगे, इट इज आउटसाइड। पेरिलॉक्यूलर नहीं होगा। इंट्रावेट्रल जो होता है, दिस इज इंट्रावेट्रल, इंट्रावेट्रल होता है तुम्हारा नियर द लेंस, नियर द लेंस। इंट्रावेट्रल इज नियर द लेंस, नियर द लेंस, ठीक है? नियर द लेंस होता है तुम्हारा इंट्रावेट्रल। और पेरीऑक्यूलर इट इज आउटसाइड, पेरीऑक्यूलर जो होता है वो आउटसाइड होता है, आउटसाइड। सुप्रा जो है, सुप्रा कोरोइडल, सुप्रा कोरोइडल होता है इन बिटवीन द, सीन इन बिटवीन द स्क्लीरा एंड कंजक्टिविटा, स्क्लीरा एंड कंजक्टिविटा, कंजक्टिविटा तो किसके बीच होता है? स्क्लीरा एंड कंजक्टिविटा। लेकिन दिस इंट्रा कैमेरल, दिस इज आवर आंसर,
इट इज इन्वॉल्व द इंजेक्टिंग इन द एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई। तो तुम फोटो जब भेजूंगा तुमको थोड़ा समझ आ जाएगा, ओके। उधर इंट्राविट्रेल भी दिया हुआ है, पेरियोक्यूलर सबसे भी दिया हुआ है। तो इंट्राकैमेरल विल बी द राइट आंसर, ओके। दैट इज इन द एंटीरियर और पोस्टीरियर चेम्बर ऑफ द आई। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयोंटोफोरोसिस सिस्टम। तो इसमें से कौन सा सही है रिगार्डिंग आयोंटोफोरोसिस सिस्टम? So options are small electric charge, control drug movement, increase the permeability of core and or all of the above। तो आयरन जो सिस्टम है उसमें हम लोग सभी देखते हैं, वो स्पेस जो आयरन सिस्टम है उसमें हम लोग स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज का भी इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल ड्रग मूवमेंट भी देखते हैं, इंक्रीज परमेबिलिटी भी हम लोग देखते हैं। इधर ऑल ऑफ द अबव होगा द राइट आंसर, ओके। इसमें सभी आंसर होगा। नेक्स्ट इज अच्छा एक सेकेंड है, 1 सेकेंड, एक सेकेंड, बेटा। ओके, ओके, नाउ टेल मी दिस वन। टाइपिकल रेंज ऑफ सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स। तो उसका एक तो रेंज रहता था हम लोग का सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स के लिए, वो कितना था? 1 से 10 नैनोमीटर, 10 से 50 नैनोमीटर, 50 से 1000 नैनोमीटर, या फिर 1 से 10 माइक्रोमीटर। तो किसी को याद है कि सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स के लिए कितना होता था? सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स के लिए जो साइज होता था दैट वाज अवर 50 to 1000 नैनोमीटर, ओके। दैट इज द रेंज। 36, अच्छा दिस वन यू कैन आंसर, ओके। ये तुम लोग अगर ना भी पढ़े हो तुम लोग आंसर कर दो कि आउटर शेल ऑफ लिपोप्रोटीन मेनली कंटेन्स। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ट्राई एसाइल ग्लाइकरॉल्स, cholesterol esters, phospholipids, allolipoproteins and unsterified cholesterol, fatty acid and bile salt। तो लिपोप्रोटीन में क्या कंटेंट रहता है? तो ये एक चीज तुम अगर देखोगे, ये ना पिछले जीपैट में भी आया है और नाइपर में भी आया है, बहुत ही इजी है। एक चीज अगर तुम लोग फाइंड आउट करोगे तुमको आंसर आ जाएगा। तो तुम गेस कर पाओगे कि कौन सा आंसर होगा ऑप्शन में से? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে না? ও, ও তাহলে হয়তো হয়নি। সরি, সরি, সরি। ওয়েট। হ্যাঁ, এবার দেখো। দেখা যাচ্ছে? হ্যালো? ওকে। তো এখানে যে অপশন গুলো আছে দেখো, আউটার শেল অফ লিপোপ্রোটিনস এর কন্টেন্স হোয়াট? ট্রাইএসাইল গ্লিকারলস, কোলেস্টেরল এস্টার্স, ফসফোলিপিড, অ্যালোলিপিনস এন্ড আনস্টিফাইড কোলেস্টেরল, ফ্যাটি অ্যাসিডস এন্ড বাইল সল্ট। তো এখানে একটা জিনিস দেখলেই এই অ্যান্সারটা প্রেডিক্ট করতে পারবে। এই কোশ্চেনটা ডিরেক্ট আসেনি, মানে কাছাকাছি অপশনের মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা দেখে আইডেন্টিফাই করা যায় যে লিপোপ্রোটিনের মধ্যে মেনলি কি থাকে আউটার শেলের মধ্যে। তো এখানে অ্যান্সারটা কি হবে কেউ গেস করতে পারবে?
एग्जैक्टली, ओके। दिस विल बी द आंसर। जहां पे भी फॉस्फोलिपिड देखोगे उसके साथ जो भी एडेड हो एलोलिपिड, तो फॉस्फोलिपिड विल बी द राइट आंसर, ओके। सो दैट इज कंटेन इन आवर लिपोप्रोटीन, ओके। फॉस्फोलिपिड्स, जो भी ऑप्शन में फॉस्फोलिपिड देखोगे अगर क्वेश्चन आ गया, तो दैट विल बी द राइट आंसर, ओके। दैट विल बी आवर राइट राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ओके। एंड लिपोप्रोटीन्स जो होता है हम लोग का, वो एक्चुअली क्या होता है? लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स वो हम लोग का क्या कह सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि लिपोप्रोटीन्स आर स्पेरिकल मैक्रोमोलेक्यूल कॉम्प्लेक्सेस, जो कि क्या कंटेन करता है? प्रोटीन या फिर लिपिड कंपोनेंट्स, राइट। और उसका जो आउटर शेल होता है वो किससे बना होता है? मेनली फॉस्फोलिपिड से, ओके। और एलोलिपिन और अनस्टेरिफाइड जो कोलेस्टेरॉल बोला वो भी एडेड रहता है। एंड एन इंटीरियर कोर कंपार्टमेंट भी रहता है, जहाँ पे क्या रहता है? इनसॉल्युबल वाटर इनसॉल्युबल लिपिड्स रहता है। जैसे वाटर इनसॉल्युबल लिपिड मतलब ट्राई एसाइल ग्लाइकोलॉल्स, कोलेस्टेरॉल, ये सब, ठीक है। पर आउटर सेल जो है उसमें हम लोग का रहता है मेनली फॉस्फोलिपिड्स एंड अदर्स, ओके। और एक तो मैंने इसका आगे क्वेश्चन दिया था, दैट इज अवर आयोनटोफोरोसिस सिस्टम, राइट। तो आयोनटोफोरोसिस सिस्टम क्या होता है मेनली, जो मैं वेट, आयोनटोफोरेटिक सिस्टम में कौन सा होता है? तो इसका आंसर जो था वो मैं बोला था क्या, कि स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज कंट्रोल ड्रग मूवमेंट इनकी सब होता है। ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा फॉर आयोनटोफोरेटिक सिस्टम। तो आयोनटोफोरेटिक सिस्टम क्या है? एक सिस्टम में जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस यूज होता है। क्यों यूज होता है? टू फैसिलिटेट द ड्रग मूवमेंट फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड। किसके लिए यूज होता है? ड्रग मूवमेंट को करने के लिए, फ्रॉम एनोड टू द कैथोड, ओके। एंड ऑल्सो थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ओके। और ह्यूमन स्किन में क्या होता है? हम लोग का 40% प्रोटीन रहता है, 15 to 20% लिपिड रहता है, 40% वाटर रहता है, ठीक है। और हम लोग का क्या होता है? इट ऑल्टर्स द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट एंड इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन, ओके। ओके, नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक डिसरप्शन टेक्निक। दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, ये नाइपर का क्वेश्चन है। टेक्निक इज एसोसिएटेड विद, तो अब तुम लोग ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो कोई भी ये देखेगा उसको आंसर एक चीज लगेगा। टीडीडीएस दिया हुआ है, जीआरडीडीएस दिया हुआ है, ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम दिया है, ब्रेन टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये फेनोमेना किससे कनेक्टेड है, किस मैकेनिज्म से कनेक्टेड है? तो एवरीवन जो कि ऑप्शन देखेगा सोचेगा क्या, कि ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम विल बी द आंसर, राइट। दैट इज आवर ऑप्शन 3। बट ऑप्शन 3 विल नॉट बी आवर आंसर, ओके। ऑप्शन 3 हम लोग का आंसर होगा नहीं। ऑप्शन होगा हमारा, वेट 1 सेकेंड। আচ্ছা, আমাকে একটু কনফার্ম করো, দিখাই দে রहा তো নিমান? দেখা যাচ্ছে? ओके, तो एनीवन जो भी ये देखेगा ऑप्शन, ही विल थिंक दैट ऑस्मोटिक विल बी द राइट आंसर। पर ऑस्मोटिक डिसरप्शन टेक्निक इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी। ये जो डिसरप्शन टेक्निक है, इट इज अ इट इज फ्रॉम ब्रेन टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ब्रेन टारगेटिंग, ओके। दिस इज एसोसिएटेड विद brain targeting drug delivery system, this osmotic disruption. So here the answer will be brain targeting drug delivery system, not osmotic drug delivery system. Okay. So the answer will be D, brain targeting drug delivery system. Next. In the classification of liposomes, MLV range. MLV का full form anyone? Yes, multilamellar large vesicles. तो उसका रेंज क्या है?
तुमको याद है कि यस माइक्रोमीटर होता है ना, लेस देन जीरो। आई थिंक वो हाँ उससे लेस होता है ना, उससे ज्यादा होता है यस, उससे ज्यादा होता है ठीक, मोर देन होता है ना 0.5। और आई थिंक ये जो ऑप्शन है ना, दिस शुड बी आई थिंक इन माइक्रोमीटर होगा। ओके, बिकॉज 0 पॉइंट आई थिंक माइक्रोमीटर था। एक बार तुम लोग फिर भी देख लेना कि मल्टी जो मल्टी लैमिनर जो लार्ज वेसिकल है उसके लिए मेरे को जितना याद है ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर था। ओके, दिट इज फॉर एमयूवी, एमएलवी सॉरी, एमएलवी, एमएलवी के लिए कितना था, ग्रेटर देन। एक बार चेक कर लेना कि माइक्रोमीटर था या फिर मिलीमीटर, मेरे को लगता है माइक्रोमीटर। अच्छा, और ओ यूएल और एसएल एसयूवी के लिए क्या था, एसयूवी का फुल फॉर्म क्या है एनीवन? यस, उसका रेंज याद है? यस, 2200 नैनोमीटर, उसका रेंज है 2200 नैनोमीटर, 2200 नैनोमीटर, वेरी गुड। और एक था तुम्हारा तुमको अगर याद हो, अच्छा और क्या था, और था तुम्हारा एलयूवी, एलयूवी का याद है? एलयूवी है तुम्हारा लार्ज यूनिलैमिनर वेसिकल्स। अच्छा, एलयूवी का मैं बता दे रहा, एलयूवी का था ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर फॉर एलयूवी। ओके, और तुम्हारा होता था क्या, और होता था तुम्हारा ओएलवी। ओएलवी का फुल फॉर्म किसी को पता है, ओएलवी? खुशबू, एग्जैक्टली, ऑलिगोलैमिनर वेसिकल्स, इसका साइज याद है? यस, वेरी गुड, 0.1 से 1 माइक्रोमीटर, 0.1 से 1 माइक्रोमीटर और ऑलिगोलैमेलर। अच्छा, यूनिलैमेलर के लिए साइज रेंज अलग है, उसका कोई स्पेसिफिक साइज नहीं है, ऑल साइज रेंज में होता है। और अच्छा, और एक तो होता है एमवी, एमवी किसी को याद है, एमवी खुशबू? यस, मल्टीवेसिकल, मल्टीवेसिकल के लिए होता है ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर, ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग इधर बी होगा इधर। ओके, मोर देन 0.5 वाला। नेक्स्ट इज which ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरियर फॉर हेमोग्लोबिन, दिस इज अ जनरल क्वेश्चन। कौन सा इधर एज अ कैरियर फॉर हेमोग्लोबिन होता है, तो कोई कोई एनीवन बोल पाओगे? एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल इन एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, एंटी कैंसर एजेंट्स, ओके, वैक्सीन एडजर्वेंट्स, इधर भी यूज होता है, दैट इज अ क्लू आई हैव गिवन, used as anti-infective agent, anti-cancer agent. Okay, it is also used in gene delivery, drug targeting, pep delivery for peptide drugs. Okay, studying immune response.
and used as carriers for hemoglobin. Can anyone guess the answer? And they are also formed from phospholipids. Okay. Okay. The answer will be here neosomes. Okay. Yes, neosomes will be the right answer. Very good. तो ये आंसर होगा नियोसोम्स. Okay, very good. This one will be the right answer. नियोसोम मैंने बोला था is derived from the term नियोस एंड जोम. सो नियोस का मतलब क्या था एनीवन, अगर याद है? यस, नॉन आर्निक. वेरी गुड. मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीप स्किन पेनिट्रेशन of ethosomes is small vesicle size, cholesterol content, high ethanol concentration, polymeric coating. Skin penetration for ethosomes कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? ये तुम आंसर अगर ना भी कर पाओगे प्रॉब्लम नहीं, ये एक जनरल क्वेश्चन है. कौन सा सबसे मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है डीप स्किन पेनिट्रेशन ऑफ इथोसोम्स के लिए? तो तुम नाम से आई थिंक गेस कर पाओगे. इथोसोम्स. तो समटाइम्स तुम ऑप्शन नाम देख के गेस कर सकते हो. হ্যাঁ, সেটাই হবে. দ্যাট ইজ আওয়ার ফর হাই ইথানল কনসেন্ট্রেশন. ঠিক আছে, ইথোসোম দেয়ার ইজ হাই ইথানল concentration and from there only the term has come. So therefore the answer will be high ethanol concentration. Ocusat is a, this is I think you have studied in pharmacology. So Ocusat is a sustained drug delivery. Ocusat is a delivery used in our eye, right? For greater residence time. So in this drug delivery, which is used, okay, is a sustained delivery system of latanoprost, phenylephrine, pilocarpine, or tropicamide. So this is a easy question, I think. So guess the answer. For Ocusat, yes, pilocarpine will be the right answer. Okay. Pilocarpine will be the right answer. It is used in the as Ocusat for sustained drug delivery. Pilocarpine is the one that is used in our eye, right? Okay, very good. Which of the following is not a classification of implant system? इम्प्लांट जो सिस्टम रहता था उसका बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता था, और ये भी तुम लोग गेस कर सकते हो. ओके. पर उसमें एक क्लासिफिकेशन नहीं था. तो कौन सा नहीं था? कैन एनीवन गेस? Yes, buccal one is was not there in our implantable system. Very good. All other are parts of implant system: transdermal implant system, subdermal implant system, implant polymeric matrix. But buccal implant system is not a part. Okay, so here the answer will be, all these are parts of implantable drug delivery system. But this was not a part. Okay, answer will be D. Next is dash system does not have orifice to release the drug. So we know that in our osmotic drug delivery system, there is orifice which releases the drug, right? There is a orifice which is attached in the system of osmotic drug delivery system, osmotic drug delivery ODDS, right? But there is a system in that osmotic drug delivery system which does not have orifice. नाउ यू हैव टू गेस. और ये क्वेश्चन एक बार जीपैट में आया था, बहुत जन इसको आंसर नहीं किए थे क्योंकि ऑब्वियस बात है, उतना कोई देख के डिटेल में नहीं जाता है. सो दिस वाज केम आई थिंक इन जीपैट 2014 और 15.
आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट ईयर। तो उसमें आया था कि कौन सा सिस्टम डज नॉट हैव ओरिफिस टू रिलीज द ड्रग। तो इसमें सभी सिस्टम है ऑफ आवर ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बट इन देयर देयर इज अ पर्टिकुलर सिस्टम जहाँ पे हम लोग ओरिफिस का यूज नहीं हो रहा था। तो कैन किसी को पता है तुम दोनों में से एनीवन? और गेस करना चाहोगे? अच्छा, तुम ये ना एक चीज देख के गेस कर सकते हो। ओके, रिलीज द ड्रग। ठीक है, तो ड्रग रिलीज नहीं किया जा रहा, मतलब ड्रग को रोक के रख रहा, राइट? तो इसमें कौन सा होगा, गेस करो अभी। हाँ, तो दिस वन यू कैन समटाइम गेस कर सकते हो फ्रॉम द ऑप्शन। सो चेक द ऑप्शन। समटाइम तुम लोग अगर ना भी पता हो, तुम लोग ब्लैंक छोड़ के आ जाते हो, तो इधर तुम अगला ऑप्शन देखो कि ड्रग रिलीज को, मतलब ड्रग रिलीज को, अगर ड्रग रिलीज हो जाएगा तब कंट्रोल ड्रग डिलीवरी होगा कैसे, राइट? तो ऑब्वियसली कंट्रोल वाला तो होगा ही नहीं ना, तो ऑब्वियसली इसके लिए आंसर होगा द कंट्रोल पोरोसिटी ऑस्मोटिक पंप। ओके, तो जो लोग वो देख के समझ गए थे वो लोग आंसर कर पाके आए थे। वेरी गुड। अच्छा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि रिजर्वायर और मैट्रिक्स आर एग्जांपल ऑफ which टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम? केमिकली कंट्रोल सिस्टम, आयन एक्सचेंज सिस्टम, डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम, हाइड्रोजन सिस्टम। तो तुमको को पता है कि रिजर्वायर और मैट्रिक्स दो तरफ के सिस्टम में आता है। उसमें से एक तो ऑप्शन में दिया गया है, तो एनीवन कोई आंसर गेस करेगा? एनीवन? इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, एग्जैक्टली exactly. और डिफ्यूजन, हाँ, डिफ्यूजन विल बी द आंसर। अनदर टाइप ऑफ सिस्टम इज देयर जहाँ पे मैट्रिक्स और रिजर्वर होता है। एनीवन? डिफ्यूजन छोड़ के और एक तो क्या था? डिसोल्यूशन था कि नहीं? उधर भी मैट्रिक्स रिजर्वर था कि नहीं? तो डिफ्यूजन और डिसोल्यूशन इधर में मैट्रिक्स और रिजर्वर सिस्टम हम लोग का था। ओके, मैट्रिक्स एंड रिजर्वर, जिसका फिनोमेना अलग था दोनों का ही। तो यहाँ द आंसर विल बी सी। अच्छा, ये तुम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन सा गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ये तुम लोग आंसर कर पाओगे, ये तुम लोग अगर ना भी पढ़े हो ये लोग आंसर कर पाओगे कि कौन सा गुड कैंडिडेट होगा फॉर कंट्रोल रिलीज सिस्टम। पोलर आयोनाइज्ड, पोलर नॉन आयोनाइज्ड, नॉन पोलर अनआयोनाइज्ड, ऑल ऑफ दी अबव। और इसका आंसर तुम, मैं अगर बोल भी दो तो तुम होमवर्क ये है घर जाके देखोगे क्यों होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सोचोगे तो कर लोगे। पोलर आयोनाइज तो होगा नहीं। ओके, ये तुम्हारा होमवर्क है। ये तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं बाद में एक दिन पूछूंगा कि इसमें कौन सा आंसर होगा, थोड़ा सोचोगे तो आंसर कर लोगे। अच्छा, और एक चीज, वैसे जैसे मैंने बोला था कि सिंथेटिक इलास्टोमर एक तो क्वेश्चन था ट्रांसडर्मल में, तो इस सिस्टम में यूज होता है एज इलास्टोमर। क्या आंसर था? प्यूला ब्यूटीन कुछ था ना एक तो क्वेश्चन में कि कहाँ पे यूज होता है, TDDS। ये तो ऐसे ही अगर तुम लोग देखोगे इधर में, सॉरी ये नहीं, ये सिंथेटिक पॉलीमर्स,
लाइक पॉली आइसोब्यूटाइडीन, पॉलीब्यूटाडीन, कहाँ पे यूज होता है? ठीक है, तो ये यूज होता है फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, राइट? तो ये एक तो सिंथेटिक वाला होता है इलास्टोमर लिखा, लेकिन ये छोड़ के भी नेचुरल कुछ पॉलीमर जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है? इन आवर ट्रांसडर्मल हम लोग यूज करते हैं सेल्यूलोज डेरिवेटिव, हम लोग गम्स यूज करते हैं, चिटोसन यूज करते हैं, राइट? और सिंथेटिक पॉलीमर हम लोग क्या यूज करते हैं? पॉलीविनाइल अल्कोहल यूज करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज करते हैं, पॉलीइथाइलिन हम लोग यूज करते हैं, पॉलीप्रोपाइलिन यूज करते हैं। और सिंथेटिक इलास्टोमर हम लोग यूज करते हैं पॉली आइसोब्यूटाइलिन, जो कि ऑप्शन में पॉलीब्यूट। ये छोड़कर हम लोग क्या एक्रोनाइट्राइल यूज करते हैं, नियोप्रीन यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो तुम्हारा और एक तो था ऐसा ही कुछ क्वेश्चन कि बायोएडेशन में किस टाइप का मटेरियल्स यूज होता है, राइट? तो बायोएडेशन अगर तुम लोग देखोगे, बायोएडेशन में क्या होता है? बायोएडेशन में हम लोग का बायोएडेशन में हम लोग यूज करते कि हम लोग यूज करते ये सारा ऑप्शन था, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट होगा नहीं। और चिटोसान, सोडियम एल्जिनेट जो इधर ऑप्शन में दिया गया है, मिथाइल हाइड्रोक्सी सेलुलोज, दीज आर ऑल नेचुरल एंड मॉडिफाइड। नेचुरल या मॉडिफाइड नेचुरल में एग्जाम्पल आता है, लेकिन और भी कुछ होता है जो कि सिंथेटिक हम लोग यूज करते हैं, जैसे कार्बोपॉल, कार्बोपॉल हम लोग का सिंथेटिक है। पॉलीएक्राइलेट सिंथेटिक है, पॉलीविनाइल अल्कोहल ये सब हम लोग का सिंथेटिक होता है, राइट? तो ये भी तुम लोग को याद करना होगा। वाटर सल्यूबल में हम लोग यूज करते हैं सीएमसी, ठीक है। अच्छा, फिर एचपीएमसी, ये सब वाटर सल्यूबल है। वाटर इनसल्यूबल में कार्बापॉल होता है, ठीक है। अच्छा, ये सब होता है। अच्छा, पॉलीविनाइल पाइरोलिडीन पीवीपी, पीवीपी वाटर सल्यूबल है या फिर वाटर इनसल्यूबल है? कोई बता पाओगे? पीवीपी भी हम लोग का वाटर सल्यूबल ही होता है, ठीक है। और एक तो मैंने बोला था इंट्रा कैमेरल, इंट्रा कैमेरल में बोला था ना, एंटीरियर या पोस्टीरियर रीजन में इंजेक्ट किया जाता है, उसको इंट्रा कैमेरल बोलता है। तो वो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? हम लोग कोई एनास्थेटिक एजेंट जब देते पोस्टीरियर या फिर एंटीरियर चेम्बर ऑफ आई में ड्यूरिंग एनी सर्जरी, तब हम लोग वो इंट्रा कैमेरल रूट का यूज करते हैं, ओके? ये याद रखना थोड़ा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट मूव, वो तुम्हारा होमवर्क है, मैं पहले ही बोला हूँ कि वो घर जाके देखना। अच्छा क्वेश्चन है वो। ड्रग रिलीज फ्रॉम ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होगा? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन? तो ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ किसका किसका पार्ट होता है ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एनीवन? हेलो? अच्छा, सस्टेन कंट्रोल रिलीज का पार्ट होता है, तो कंट्रोल रिलीज फर्स्ट ऑर्डर होता है या फिर जीरो ऑर्डर होता है, एनीवन? एग्जैक्टली, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑस्मोटिक, आंसर तो ये वो सोचो कि ऑस्मोटिक किसका पार्ट है। तुम लोग ज्यादा सोचने जाओगे आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो तुम लोग सोचना होगा कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है कौन सा, तो ऑब्वियसली ये भी इधर आंसर होगा, जीरो ऑर्डर होगा। प्रोसेस ऑफ कोटिंग बाय विच gases and liquids are encapsulated into smaller particles? It's a easy question. माइक्रो एनकैप्सुलेशन बोला जाता है, फिल्म कोटिंग बोला जाता है, ग्रैनुलेशन बोला जाता है, या ऑल ऑफ दी अबव बोला जाता है? तो क्वेश्चन पढ़ के बोलो कौन सा होगा आंसर। लिक्विड्स आर एनकैप्सुलेटेड, ये तुम्हारा टर्म याद रखना होगा, एनकैप्सुलेटेड। तो कौन सा होगा आंसर? কোনটা হবে? माइक्रो एनकैप्सुलेशन विल बी द राइट आंसर, ओके। ये सब तुम लोग ऑप्शन देख के ही समझ जाओगे, ये ऐसा क्वेश्चन है।
अच्छा, फैक्टर कंसिडर्ड फॉर सस्टेन फॉर्मुलेशन अदर देन कॉन्वेंशनल डोजेज फॉर्म। तो कौन सा फैक्टर कंसिडर किया जाता है फॉर सस्टेन फॉर्मुलेशन? डोज, हाफ लाइफ, डोजेज इंटरवल या फिर एलिमिनेशन रेट? ये कब तुम लोग बोलो कौन सा फैक्टर कंसिडर किया जाता है फॉर सस्टेन फॉर्मुलेशन के लिए अदर देन कन्वेंशनल फॉर्मुलेशन? तो ये हम लोग कंसिडर करते हैं उसका हाफ लाइफ। ओके, सो हियर द आंसर विल बी हाफ लाइफ। Next is also a very easy question, that is ये तुम इमल्शन का भी क्वेश्चन है, ये सेम है, सस्टेन रिलीज में भी बोल सकते हो, तुम्हारे इमल्शन का भी क्वेश्चन है। अ थ्री फेस इमल्शन विथ पार्टीशंस एंड फॉर सस्टेन रिलीज आर मल्टीपल इमल्शन, माइक्रो इमल्शन, ट्राइफेजिक इमल्शन या फिर इमल्शन? कौन सा होगा? थ्री फेस इमल्शन फॉर सस्टेन रिलीज। यस, मल्टीपल इमल्शन विल बी द आंसर, क्योंकि ट्राइफेजिक इमल्शन तो होता ही नहीं है, नाम ही नहीं सुना मैं, माइक्रो इमल्शन भी इधर होगा नहीं। तो पार्ट थ्री फेस इमल्शन जो होता है जहाँ पे पार्टीशन होता है, दैट इज ऑल मल्टीपल इमल्शन। ओके, okay, now this is the last question we have for today, that is of stealth liposome। स्टिल्थ लिपोसोम हैव बीन डेवलप्ड, तो ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो जीपैट नाइपर दोनों में ही आया है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो स्टिल जो लिपोसोम होता है वो है पिगाइलेटेड, मतलब पिगाइलेटेड मतलब पॉलीइथाइलोन ग्लाइकोल से कोटिंग किया गया है। पिगाइलेटेड, पीजी लाइटेड को हम लोग पिगाइलेटेड भी बोलते हैं, पिगाइलेटेड मतलब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से कोटिंग किया गया है। सो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से कोटिंग किया हुआ ये जो स्पेशल टाइप का तुम्हारा जो लिपोसोम है, ये किस लिए डेवलप किया गया है? तो ऑप्शन है तुम्हारा एक्सटेंड देयर हाफ लाइफ, डिक्रीज देयर ड्रग टॉक्सिसिटी, enable site specific drug delivery system, और alter the size of vesicles। किसी को पता है? Yes, to extend the half life। Okay, very good, this one will be the right answer, for longer circulation half life। Okay, for targeted drug delivery system, for stability increase। Okay, for ड्रग पेलोड को इंक्रीज करना, इम्यून इवेशन के। तो इधर जो करेक्ट ऑप्शन इस हम लोग का ऑप्शन है इस सबसे वो है हाफ लाइफ को एक्सटेंशन के लिए, ठीक है, जो कि हम लोग कंट्रोल ऐसे सिस्टम में बहुत प्रेफरेंस करते हैं, राइट। तो स्टिल लिपोसोम जो पिगाइलेटेड लिपोसोम है वो है तुम्हारा मेनली हाफ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं। ओके, सो आज नई क्वेश्चन कुछ रखा था, और भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे आता रहेगा, ठीक है, और भी बहुत क्वेश्चन तुमको मिलता रहेगा, बट कॉन्सेप्ट का आसपास होता है, ठीक है। तो तुम लोग जहाँ से भी क्वेश्चन अभी है फिलहाल सॉल्व करते रहो, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, रिवाइज करते रहो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तुम लोग कभी भी डीएम कर सकते हो, ठीक है, ग्रुप में अगर किसी को प्रॉब्लम है सबके सामने पूछने को, तो यू कैन एनी टाइम मैसेज एंड आस्क, ओके, इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम, या फिर कोई भी एमसीक्यू में डाउट हो गया कि ये आंसर होगा कि, यू कैन आस्क, ओके, नो प्रॉब्लम। और जहाँ पे भी हो क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और ये मैं बोलूंगा नहीं कि एनडीटीएस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, आता है क्वेश्चन, ऐसा कि नहीं आता नहीं है, तो एकदम ही छोड़ के जाना नॉट राइट। फॉर देखो थर्ड ईयर लोगों के लिए मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि ज्यादा इसके ऊपर, फोर्थ ईयर वाले तुम लोग देख सकते हो क्योंकि तुम्हारा वैसे ही था सेवन सेम में, तो थोड़ा तो तुम लोग को पता ही है। और आंसर कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ आता नहीं कि तुम लोग गेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो थर्ड ईयर वाले फिर भी मैं बोलूंगा कि ज्यादा फोकस इसको करने का दरकार नहीं है, क्योंकि आए आए आता है तो एक आता है, एक या दो आता है, और नहीं आता तो नहीं भी आता है बहुत सा, एक आता है नहीं तो नहीं आता है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसलिए उतना भी फोकस करने का दरकार नहीं है, फिर भी थोड़ा जान के रखो अगर बाई चांस, क्योंकि बहुत दिन टॉपिक देख के नहीं, बाई चांस आ गया, अभी जीपैट का कोई भरोसा नहीं है। पहले हम लोग का होता था कि ये सबसे हम लोग जानते थे कि इतना ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि
लास्ट 2 साल जो जीपैट हुआ है, कोई ठीक ठिकाना नहीं आया कहाँ से क्वेश्चन आए। फिर भी ये लोग इस बार बोले कि सीक्वेंस कुछ किए है, मैंने देखा 38 सीटी 38 फॉलो क्या केमिस्ट्री। नहीं तो हम लोग का टाइम और लास्ट बार कोई ठीक ठिकाना नहीं था कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा था। तो इसलिए उस टाइम बहुत ही यूजफुल हो जाता है कि तुम लोग अ, सब कुछ थोड़ा मोड़ा देख के रखो, ठीक है। एटलीस्ट फिर भी तुम लोग एग्जाम हॉल में जाके गेस कर पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल और भी तुम लोग जहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते हो करो, ये किया गया जाते तुम लोग एटलीस्ट थोड़ा मोड़ा फिर से रिवाइज हो, या मतलब क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो तुमको थोड़ा फिर से उसका बारे में याद आया। अब थोड़ा तुमको पढ़ के जाना हो, जो भी तुम्हारा नोट्स या कुछ भी है, या फिर कोई भी तुम मॉड्यूल या कुछ भी देख रहे हो, या फिर हम लोग का नोट्स, ठीक है। लास्ट में जो भी तुम्हारे से पॉसिबल हो वो देखो, जहाँ से तुमको लगता है कि क्वेश्चन ज्यादा है, वो वाला पार्ट ज्यादा अच्छी तरह से देख के जाओ, ठीक है। ज्यादा दैट वुड बी बेटर, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो उसमें तुम जितना अच्छा कर सको, ठीक है। तो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।